Everyone, welcome back to my YouTube channel. In today's class, we are starting chapter 1 of class 10 science, that is chemical reactions and equations. This chapter is all about understanding what actually happens when substances react with each other. Do you know that every breath you take, every bite of food you eat, and even the rust on an old iron gate all are chemical reactions? Today, we are going to uncover the science happening around us every single moment. In this chapter, we will learn what chemical reactions are, how to identify them, how to write them in the form of word equations and chemical equations, and how to balance those equations properly. We will also understand different types of reactions like combination, decomposition, displacement, double displacement, and redox reactions, along with two very important real life effects, that is corrosion and rancidity. I will divide this chapter in three parts. The first one is physical changes and chemical changes. Chemical changes. Second part is different types of chemical reactions. And the last part is real life effects. Okay, in today's session I will cover first part, that is physical changes and chemical changes. With this I will also cover how to write chemical reactions, okay, and their rules also. So let's begin the session, and it's my humble request to my all dear students, stay with me till the end of this lecture, and I promise you will find chemical reactions much simpler and interesting. So शुरू करें. चेंज इन द लॉ ऑफ नेचर. चेंज जो है हम डे टू डे लाइफ में रोज़ाना देखते हैं. सपोज हमारे बाल बढ़ रहे हैं, हमारी ग्रोथ हो रही है, कभी हम देख रहे हैं कि हमने आज पेट्रोल डलाया बाइक में और वो ख़त्म हो गया धीरे धीरे. ये सब जो है ये सारे चेंजेस हैं, और चेंज होना ही नेचर का सबसे बड़ा रूल है. ठीक है. देयर आर सो मैनी सिचुएशंस of daily life where we can observe various changes. Conversion of water into vapors from a cup of hot tea. Corrosion of iron articles rusting if exposed to humid atmosphere. Cooking of food. Digestion of food in our body. Breaking of any article like glass. Combustion of fuel in our vehicle. Okay. Scientists classify these changes as physical changes and chemical changes. There are two types of changes. That is two types. First one is physical and second one is chemical. Physical change वहाँ होगा जैसे आपने वाटर को फ्रीज़र में डाल दिया फ्रीज़ होने के लिए और वो आइस क्यूब में कन्वर्ट हो गया. दैट इज़ फिज़िकल चेंज. यहाँ पे कोई केमिकली कोई रिएक्शन तो हो नहीं रहा, कुछ भी उसका जो फॉर्म है वो चेंज नहीं हुआ, तो इसे हम कहेंगे, इस तरीके के चेंजेस को हम कहेंगे कि ये फिज़िकल चेंजेस हैं. या हमने पानी को बॉयल कर दिया, वो वाटर वेपर में चेंज हो गया. दीज आर काइंड ऑफ फिज़िकल चेंजेस. अ चेंज इन विच फिज़िकल प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस change but the chemical composition does not change. ठीक है. फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो रही है, ओनली क्या होगा, फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होगा सब्सटेंस का, बट द केमिकल कंपोजिशन डज नॉट चेंज. ऐसा तो हुआ नहीं कि हमने पानी को फ्रीज़र में रखा फ्रीज होने के लिए, आइस क्यूब में होने के लिए. ऐसा तो हुआ नहीं कि वो एसिडिक हो गया. अगर वो पानी से आइस क्यूब बनने की जगह वो एसिडिक हो जाता,
या उसका कलर ही चेंज हो जाता। सपोज वो पानी का कलर जो है वो न्यूट्रल था, अब वो ब्लू कलर का हो गया, ये भी नहीं हुआ। तो ये क्या था, सिर्फ उसका फॉर्म चेंज हो गया, ठीक है, फिजिकल फॉर्म चेंज हो गया, कोई केमिकल फॉर्म चेंज नहीं हुआ उसका। तो ऐसे चेंज को हम कहेंगे फिजिकल चेंजेस। फॉर एग्जाम्पल freezing, melting, boiling, condensation, evaporation. Characteristics of physical changes: the identity of the substance is maintained. जैसे कि मैंने अभी समझाया कि हमने वाटर को फ्रीज़र में रखा फ्रीज होने के लिए, लेकिन वो है क्या, वो आइस क्यूब, वो पानी का ही तो फॉर्म है, तो वहाँ पे उसकी आइडेंटिटी चेंज नहीं हुई, ठीक है। द चेंज इज जनरली टेम्परेरी, जो चेंज है वो टेम्परेरी होगा। अगर हम आइस क्यूब को फ्रिज से बाहर निकाल दें तो क्या होगा, वापस पानी बन जाएगा। सपोज हमने पानी को बॉयल किया, वो इवापोरेट हो गया, लेकिन वापस अगर हम उसी पानी जो बॉयल हो रहा है और वो जो वेपर बन रहा है इवापोरेट होके, अगर हम उसे कहीं स्टोर कर लें तो वो क्या होगा, पानी ही तो बनेगा बाद में। फॉर एग्जाम्पल आप पानी बॉयल कर रहे हो एक पैन में और उसके ऊपर आपने एक प्लेट लगा दी, तो आप देखोगे जब पानी आपने प्लेट हटाई तो उसके नीचे प्लेट के नीचे वाटर ड्रॉपलेट्स होंगी। पानी जो इवापोरेट होके निकलना था वो कहीं निकल नहीं पाया, तो पानी उसके ऊपर इवापोरेट होके जब ठंडा हुआ तो पानी के फॉर्म में आ गया। तो उसकी प्रॉपर्टीज़, जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, वो चेंज नहीं हो रही हैं। जो चेंज था वो टेम्परेरी था, कि पहले पानी था फिर गैस फॉर्म में चेंज हुआ, इवापोरेट हुआ, लेकिन वो टेम्परेरी था। जब ठंडा हुआ गैस इवापोरेशन पे तो वापस वो पानी ही बना, ठीक है। हीट चेंज मे और मे नॉट टेक प्लेस, ओनली द फिजिकल स्टेट और सम ऑफ द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंसेस आर चेंज्ड, जनरली रिवर्सिबल इन नेचर, ठीक है। मैंने अभी अभी यही पॉइंट समझाया कि अगर हम पानी को फ्रीज़र में रख देते हैं फ्रीज होने के लिए कि वो आइस क्यूब हो जाए, लेकिन हम क्या उसे पानी वापस बना सकते हैं आइस क्यूब को? यस। तो ऐसा चेंज जो कि एक बार चेंज हुआ और रिवर्सिबल भी हो, वो भी इसकी प्रॉपर्टी में आता है, ओके। अब हम सेकेंड टाइप ऑफ चेंज समझते हैं, दैट इज केमिकल चेंज। अ चेंज इन विच one or more substances are transformed into one or more new substances with different chemical composition and properties. Suppose chemical changes उन्हें कहते हैं जहाँ पे एक से जो सब्सटेंस था वो सब्सटेंस अब वो सब्सटेंस नहीं रहा, वो सब्सटेंस कोई और नया सब्सटेंस बन गया। जैसे कि हम जब गेट को देखते हैं, बारिश वगैरह होती है, अगर उस पर पेंट नहीं है तो जो आयरन है उस पर रस्ट आ जाता है। अब वो रस्टेड आयरन जो है, वो जो रस्ट है उसका केमिकल कंपोजिशन कुछ और होगा, ठीक है। सिमिलरली अगर हमने खाना खाया, हमने रोटी खाई, ठीक है, फॉर एग्जांपल हम एक चपाती खा रहे हैं, जब वो माउथ में गया और सलाइवा से मिक्स हुआ तो उसका केमिकल कंपोजिशन चेंज हो गया, ठीक है। उसका जो पीएच था पहले चपाती का वो चेंज हो गया, हमारे सलाइवा के पीएच से मिक्स हो गया, ठीक है। बहुत सारे चेंजेस हो गए उसमें। एक तो उसका फिर उसके बाद में हमारे वो पेट में गया, बहुत सारे एंजाइम से मिला, उसके बाद में और चेंज होता गया, एक्सक्रीट हो गया, एकदम डिफरेंट हो गया। तो जो उसका पहले क्या था स्टार्टिंग में, वो एक चपाती था, फिर सलाइवा से मिक्स हुआ, उसका पीएच चेंज हो गया, फिर स्टमक में गया, बहुत सारे एंजाइम से मिक्स हुआ, उसका पीएच और केमिकल कंपोजिशन एकदम चेंज हो गया और कुछ नया सब्सटेंस बन गया। तो केमिकल चेंज में एक सब्सटेंस से वो कोई न्यू सब्सटेंस बन जाता है, ठीक है। ऐसे चेंज को हम केमिकल चेंज कहते हैं, जहाँ पे जो पहला इनिशियल सब्सटेंस जो था उसकी सारी प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाएं और वो एक नया सब्सटेंस बन जाए, पुराने वाली जो उसकी आइडेंटिटी थी वो एकदम ही गायब हो जाए। उस चेंज को हम कहेंगे केमिकल चेंज, ओके। फॉर एग्जाम्पल रस्टिंग ऑफ आयरन, combustion of fuel, digestion of food, photosynthesis. Characteristics of chemical changes. Okay. New substances with different properties are formed. मैंने अभी बताया कि पहले आपने चपाती खाई और वो हमारे माउथ में गया, हमने उसको च्यू किया, उसके बाद में वो सलाइवा से मिक्स हुआ, क्या हुआ,
पहले तो उसका पीएच चेंज हो गया, सलाइवा के पीएच से मिक्स हो गया, फिर स्टमक में गया और एंजाइम से मिक्स हुआ, उसकी प्रॉपर्टीज़ और चेंज हो गई। तो जो न्यू सब्सटेंस है वो पहले वाले से एकदम डिफरेंट होगा। द चेंज इज़ परमानेंट। क्या वो चपाती जैसे पहले थी, पेट में जाने से पहले जैसे स्टार्टिंग में थी प्लेट में रखी हुई, क्या वैसे हो सकता है? नहीं ना। पेट में गई हुई चपाती तो अब वैसे गोल रोटी बन नहीं सकती, उसका वो एकदम नए मिक्सचर में आ गया। या जो फ्यूल बर्न हो चुका है, कंबशन ऑफ फ्यूल है, क्या वो कंबस्टेड फ्यूल जो है वो वापस फ्यूल हो सकता है? नहीं। तो जब कोई ऐसा चेंज जो परमानेंट हो जाए, टेम्परेरी ना हो, परमानेंट चेंज हो जाए, ऐसा ये प्रॉपर्टी देख के भी आप कह सकते हो कि ये क्या है, केमिकल चेंज है। एनर्जी इज आइदर ऑब्जर्व्ड और रिलीज इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और साउंड। केमिकल कंपोजिशन चेंजेस कंप्लीटली। केमिकल कंपोजिशन जो है वो एकदम चेंज हो जाएगा, जनरली इरिवर्सिबल इन नेचर। ये इरिवर्सिबल इन नेचर है। चपाती स्टमक में जाने के बाद में या सलाइवा से फर्स्ट स्टेज पे ही जब हमने माउथ में च्यू किया और वो सलाइवा के पीएच से रिएक्ट हुआ तो क्या मिक्स हुआ, तो क्या वो वापस चपाती बन सकती है? नहीं। तो ये चेंज क्या है? इरिवर्सिबल है। ऐसे किसी भी सब्सटेंस का अगर कोई चेंज हुआ है जो इरिवर्सिबल है तो वो भी एक कैरेक्टर है केमिकल चेंज का। ओके, आई होप आप लोगों को यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। केमिकल रिएक्शंस, a process in which one or more substances react or convert into one or more new substances, products with different chemical properties. Suppose ये सब्सटेंस 1 है और हमने कोई और सब्सटेंस ले लिया, सपोज इसका हम कुछ भी नाम ले लेते हैं, और हमने इन दोनों को मिक्स किया, अब कुछ नया बन गया। ठीक है, ये हम ऐसे एक जनरल एग्जांपल ले रहे हैं। ये दोनों हमारे क्या थे? रिएक्टेंट। और ये क्या है? हमारा प्रोडक्ट। ये दोनों आपस में क्या हुए? रिएक्ट हुए, और इनसे क्या बना? नया जो चीज़ बनी उसे हम कहेंगे प्रोडक्ट। ठीक है, जब भी कोई ऐसा प्रोसेस हो जहाँ पे एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंस एक दूसरे से रिएक्ट हो रहे हों और रिएक्ट होके कोई नया चीज़ बन रही हो, कोई न्यू सब्सटेंस बन रही हो, दैट इज़ प्रोडक्ट। इस प्रोसेस को हम कहेंगे केमिकल रिएक्शंस। ओके, और वो जो प्रोडक्ट है उसकी न्यू प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए, पहले वाली प्रॉपर्टीज़ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, representation of chemical reactions. Chemical reactions can be represented using word equation and chemical equation. अभी हम समझते हैं what is word equation. A chemical reaction written using the names of reactant and product is called word equation. Suppose यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, हमने मैग्नीशियम को ऑक्सीजन से रिएक्ट किया, हमारा क्या बन गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड। हमने सिंपली लिख दिया कि मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम को हमने ऑक्सीजन से रिएक्ट किया, तो हम यहाँ पे मेरे पास स्पेस नहीं है, जस्ट मिनट, रिएक्ट किया और हमें क्या मिल गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड मिल गया। ठीक है, ये हमारा क्या है? प्रोडक्ट है। ठीक है, तो अब जो ये इक्वेशन हमने क्या लिखी है, ये वर्ड्स में लिखी है। ठीक है, इस ऐसी इक्वेशन को हम कहेंगे वर्ड इक्वेशन। लेकिन अभी इसे हम ये लिखने में थोड़ा सा लंबा लंबा लग रहा है, तो हमने क्या किया? एक नई चीज़ बना ली, केमिकल इक्वेशंस। ठीक है, अब इसे हम केमिकल इक्वेशन में मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन जो रिएक्ट कर रहे हैं और फिर यहाँ पे बन रहा है हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसे हम और शॉर्ट में लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है एग्जाम्पल,
जब हम केमिकल फार्मूला का यूज़ करने लगे या सिंबल्स का यूज़ करने लगे तो किसी इक्वेशन में, किसी इक्वेशन में, तो ऐसी इक्वेशन को हम कहेंगे केमिकल इक्वेशन। वर्ड इक्वेशन में क्या था, हमने सीधा सीधा नाम लिख दिया, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन क्या बन गया हमारा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, सिर्फ नाम लिख दिया, जैसे अंशिका प्लस अंशु। अब इसका हमने कुछ बना दिया, सपोज हमने बना दिया इसका अंशा। ठीक है, या सॉरी, इसका हम बना देते हैं अंश बना दिया, या मैं ये एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, इसका बन सकता है अंश, और ऐसा कुछ हमने बना दिया। ठीक है, ये क्या हुआ, मैंने अपना रियल नेम लिया और अपना निकनेम लिया। ठीक है, दोनों ही हमारे नाम है और दोनों को प्रॉपरली नाम में लिख दिया। ठीक है, और हमने रिएक्ट किया, कुछ ऐसा बना। लेकिन अभी मैं सिर्फ इतना लेती, अपने नाम का कोई शॉर्ट फॉर्म लेती ANS, और उधर से मैं ले लेती सिर्फ U, और तब रिएक्ट करती, और तब ये कुछ ऐसा बनता। ठीक है, जब हमने इसका सिंबल ले लिया, मैंने अपने रियल नाम का सिंबल ले लिया स्टार्टिंग का, और निकनेम का लास्ट का U ले लिया एज अ सिंबल, और एक नया सिंबल बना दिया। जब किसी भी इक्वेशन में हम सिर्फ नाम ना लिखने के बजाय फॉर्मूला और सिंबल का यूज़ करें, फॉर्मूले और सिंबल्स का यूज़ करें, तो ऐसी इक्वेशन को हम कहते हैं केमिकल इक्वेशंस, केमिकल इक्वेशन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमने जो यहाँ पे, अब मैं ये पूरा रिमूव कर रही हूँ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ ऊपर लिया था ना मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, और वो रिएक्ट होके मैग्नीशियम ऑक्साइड बना था। तो हमने यहाँ पे वही इक्वेशन को, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन प्लस बना हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड, उसे हम सिंबल ऑफ फॉर्मूला का यूज़ करके कैसे लिखेंगे, मैग्नीशियम को हमने लिख दिया 2 mg और ऑक्सीजन को लिखा O2, और बना क्या 2 mgO2। मैग्नीशियम ऑक्साइड को हमने क्या लिख दिया 2 mgO2। ठीक है, ये है हमारा मैग्नीशियम, ये हमारा ऑक्सीजन, और ये हमारा जो प्रोडक्ट है ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा वर्ड इक्वेशन और केमिकल इक्वेशन दोनों में डिफरेंस क्या है और बनते कैसे हैं दोनों। ठीक है, अभी राइटिंग केमिकल इक्वेशंस, उसके कुछ स्टेप्स और कुछ रूल्स हम समझेंगे। ठीक है, स्टेप्स टू राइट अ केमिकल इक्वेशंस, राइट द वर्ड इक्वेशन। पहला रूल, कोई भी इक्वेशन बनाने से पहले हम पहले उसको वर्ड में लिखेंगे। ठीक है, राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। जैसे यहाँ पे रिएक्टेंट था हमारा, जो हमने लिया था, मैंने एग्जाम्पल, उसमें हमारा रिएक्टेंट था मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, ये हमारा क्या था रिएक्टेंट। ठीक है, और प्रोडक्ट हमारा था मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये हमारा था प्रोडक्ट। ठीक है, इसका हमें केमिकल फॉर्मूला लिखना होता, तो इसका फॉर्मूला हो गया था हमारा 2 mg। मैं कलर चेंज करती हूँ ताकि आप लोगों को क्लियरली समझ में आए। ठीक है, मैग्नीशियम का था हमारा 2 mg, ऑक्सीजन का था O2, मैग्नीशियम ऑक्साइड का था 2 mgO2, सॉरी 2 mgO। ठीक है, फिर हमें इक्वेशन को बैलेंस करना होता है। हमने यहाँ पे पहले क्या था, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का केमिकल फॉर्मूला लिख लेना होता है।
सेकेंड स्टेप, पहला स्टेप word equation, then chemical formula of reactants and products. Balance the equation by adjusting coefficients. Coefficients ये है, जैसे हमने यहाँ पे 2 लगाया है, इधर लगाया है 2mg, इसे हमें जितना इधर है reactant में उतना ही product में भी होना चाहिए. Got it? जितना हमारा reactant में coefficient है उतना ही product में भी होना चाहिए. ये balance होना चाहिए. कोफिशिएंट दोनों साइड बैलेंस होना चाहिए हमारा. ठीक है. इंडिकेट द फिजिकल स्टेट ऑफ सब्सटेंस. वो लिक्विड में है, सॉलिड में है, गैस फॉर्म में है. ठीक है. लिक्विड, सॉलिड और गैस किस फॉर्म में है उसका फिजिकल स्टेट ऑफ सब्सटेंस वो होना चाहिए. ठीक है. सपोज हमने ऑक्सीजन ले लिया गैस में, तो ऐसे नीचे लिख देना है हमें गैस में. ठीक है. उसके बगल में मेंशन कंडीशंस इफ रिक्वायर्ड, टेम्परेचर, प्रेशर, कैटालिस्ट. आई होप यहाँ तक समझ आ गया होगा. और इसके 5 जो स्टेप्स हैं वो आपको याद होने चाहिए. बोर्ड एग्जाम में अगर कहीं भी आपको केमिकल इक्वेशन लिखने को आ गया तो ये 5 स्टेप्स के थ्रू आप लिख सकते हो. Symbols used in chemical equations: plus, plus और added to. इस एरो का मतलब है yield और produces, जो कि हम reactant से प्रोडक्ट जब बनता है तो कुछ नया प्रोड्यूस हो रहा है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं. ओके. सॉलिड स्टेट के लिए S, लिक्विड स्टेट के लिए L और गैसियस स्टेट के लिए S. और अगर एक्वस सॉल्यूशन है, ठीक है, कोई पानी वाला सॉल्यूशन है, एक्वस सॉल्यूशन है, तो उसके लिए AQ. कोई हीट सप्लाइड है तो ये ट्रायंगल, और गैस इवॉल्व है तो ये सिंबल, और प्रेसिपिटेट फॉर्म है तो डाउनवर्ड एरो. ठीक है. ये टेबल जो है ये भी आपको हेल्प करेगी कोई भी इक्वेशन बैलेंस करने के लिए. ठीक है. आज मैं इस लेक्चर में यही ख़त्म कर रही हूँ. कल हम समझेंगे बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. ठीक है. और टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशंस. कल ये 2 टॉपिक मैं आप लोगों को समझाऊंगी विद फ्यू क्वेश्चंस ऑफ NCERT, और जो कि बोर्ड एग्जाम में भी आपको हेल्प करेंगी. थैंक यू फॉर वॉचिंग. डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.